हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा ग्लोकोमा. सो व्हाट इज़ ग्लोकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस दैट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी एसोसिएटेड विद विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स एंड एलिवेटेड आईओपी. सो ग्लोकोमा एक ऐसी कंडीशन है आई में जिसमें आईज़ की ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है और उसमें विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स और आईओपी का एसोसिएशन रहता है. इधर देयर इज़ अ elevated IOP and the visual field defect. So glaucoma is a condition that have a characteristic optic neuropathy associated with visual field defects and intraocular pressure. Now reading next about pathophysiology. So now what is pathophysiology? It is related that all the glaucoma revolves around the aqueous humor circulation. तो aqueous humor circulation दो रूट से होता है. सबसे पहले ट्रबिक्यूलर जो कि कन्वेंशनल आउटफ्लो है, अबाउट 80% ऑफ द आउटफ्लो इज थ्रू दिस रूट ओनली. तो इसमें सबसे पहले aqueous humor पोस्टीरियर चैम्बर में फ्लो करता है एंड देन फ्लोज इनटू द एंटीरियर चैम्बर वाया pupil and through the canal of Schlemm. एंड नेक्स्ट इज यूवियोस्क्लेरल अनकन्वेंशनल आउटफ्लो, जिससे 20% ही आउटफ्लो होता है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अबाउट द एंगल्स ऑफ एंटीरियर चैम्बर. तो इट प्लेज वाई वी आर रीडिंग दिस anterior chamber angle because it plays an important role in the process of aqueous drainage anteriorly to posteriorly. First there is a Schwalbe-Line trabecular meshwork, scleral spur, anterior most part of the ciliary body, root of iris. These are the contents from anterior to posterior angles of anterior chamber. Next is the classification of this glaucoma. So first there is a congenital or developmental glaucoma which is present by birth, and next is the acquired glaucoma. Third is the secondary glaucoma. कंजेनाइटल और डेवलपमेंटल एंड जो ग्लोकोमा है उसको हम वापस से दो में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी इज ड्यू टू डेवलपमेंटल एनोमली एट द एंगल ऑफ द anterior chamber, and secondary it may be associated with some ocular or systemic disorders से अगर associated है उसकी वजह से अगर कोई congenital glaucoma हो रहा है then it is secondary cause. बट अगर एंगल की एनोमली पे की वजह से ग्लोकोमा हो रहा है कंजेनाइटल देन इट इज़ प्राइमरी. अक्वायर्ड भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा एंड प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, CG, POAG and PACG, open angle and angle closure. So now first we will read about the primary open angle glaucoma. Primary open angle glaucoma is a chronic, slowly progressive optic neuropathy associated with elevated IOP and visual field defects. इसमें भी since it's a type of ग्लोकोमा, इसमें एलिवेटेड आईओपी होगा, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स होंगे और ऑप्टिक न्यूरोपैथी होगी. नाउ इट इज़ मोर कॉमन देन एंगल क्लोजर. व्हाट इज द ईटियोलॉजी कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करता है क्योंकि एक्वस आउटफ्लो नहीं हो पाता फ्रॉम द ट्रेबिकुलर मेशवर्क. आपको ये ध्यान रखना है कि ओपन एंगल ग्लोकोमा ट्रेबिकुलर मेशवर्क की प्रॉब्लम से हो रहा है, इधर ड्यू टू स्क्लेरोसिस ऑफ द this trabecular meshwork. So IOP is elevated due to decrease in aqueous outflow across trabecular due to its sclerosis. Now next we will read about the clinical features of the primary open angle glaucoma. First is we will divide it into three segments, three signs. First is the anterior segment में कैसे changes आएंगे,
इंट्राऑक्यूलर में कैसे चेंजेस आएंगे एंड देन ऑप्टिक डिस्क में क्या क्या चेंजेस आएंगे. सो एंटीरियर सेगमेंट में प्यूपिल reacts to light but the anterior chamber का depth is will be normal. IOP will be greater than 21 mm Hg which is normal. 21 mm Hg से ज़्यादा होगा. And optic disc changes में we will go for the ISNT rule. Now ISNT is inferior, superior, nasal and temporal. Inferior is मतलब greater than, superior is greater than, nasal is greater than temporal. So this is the concept of normal ISNT rule. तो इसमें ओवल डिस्क आ जाता है क्योंकि बैक फ्लो होता है आपका. इस इमेज में देख सकते हो ग्लोकोमा वाले में कि देयर इज़ अ बैक फ्लो, बैक प्रेशर ड्यू टू एलिवेटेड IOPs. सो न्यूरल रिम टिश्यू के लॉस की वजह से ओवल कप हो जाता है. नेक्स्ट इज़ दी in the optic disc changes is the asymmetry of the cups. Visual field effect की बात करें then visual field effect में there is a some signs, that is isopter contraction. Isopter contraction is general, it refers to एक जनरल कंस्ट्रिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड पेरिफेरल फील्ड का कंस्ट्रक्शन को आइसोप्टर कंट्रैक्शन कहते हैं. बारिंग ऑफ ब्लाइंड spot. Next is paracentral scotoma, double scotoma, Renae's central nasal step and arcuate scotoma. These are the some of the signs of clinical features of the open angle glaucoma. Renae's central step and the last is arcuate scotoma. So next we will read about the diagnosis of the open angle, raised IOP, visual field effects and cupping of the optic disc. Visual field effect. So next we will have treatment. क्या treatment करेंगे? So the treatment of the glaucoma is generally depends on the nature कि कैसा nature है और कितनी severity है. In general वैसे तो ये क्योर नहीं होता है बट हाँ इसको कंट्रोल किया जा सकता है. सर्जिकल ऑपरेशन इज लास्ट मतलब अगर किसी से भी ठीक नहीं हो रहा देन विल परफॉर्म सर्जरी. But first try for the medical, then for laser, then combination, then surgical. So medical management, there is first is beta blockers use करो. Then next is the adrenergic drugs. Beta blockers में आ जाएंगे जैसे timolol, betaxolol. So these are some of the beta blockers. Adrenergic drugs में आ जाएंगे जो कि हमारे एपिनेफ्रिन एंड थर्ड इज द पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स. पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स एंड नेक्स्ट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स. तो ये जो सारे मेडिकल थेरेपी हम दे रहे हैं ये क्या करते हैं? दे इंक्रीजेज द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर जिसकी वजह से IOP भी डिक्रीज हो जाता है. तो ओवरऑल ये रिलीफ करते हैं. सो इट रिड्यूसेस द IOP एंड इंक्रीजेज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर. एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो को बढ़ाता है. बढ़ाता है, मैंने साइन गलत लिख दिया है यहाँ पे. इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ, सॉरी फॉर दिस पॉइंट, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ IOP एंड एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो जो है वो बढ़ जाता है. जस्ट रिवर्स कर दो जो मैंने लिखा है.
द नेक्स्ट इज़ द लेज़र इंडिकेटेड विद व्हेन मेडिकल अगर थेरेपी फेल हो जाती है देन दिस लेज़र इज़ गिवन. सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ फिल्ट्रेशन सर्जरी एंड कॉम्बिनेशन. ट्रेबिक्यूलोटॉमी कर सकते हैं ट्रेबिकुलर मेशवर्क का और मेडिकल के साथ साथ. प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जिसमें एक पहले से ही एंगल नैरो होने की वजह से ये हो रहा है. इसके 3 स्टेजेस होते हैं: कांस्टेंट इंस्टेबिलिटी, एक्यूट कंजस्टिव स्टेज एंड क्रॉनिक क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा. देन प्रोवोकेटिव टेस्ट, डार्क रूम टेस्ट करेंगे एंड माइड्रियाटिक टेस्ट करेंगे और इन सब में हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो 8 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा. अगर 8 mmHg से ज़्यादा IOP है देन इट इज़ पॉजिटिव. सो विद दिस ग्लोकोमा इज़ फिनिश. थैंक यू.